Prenatal pregnancy, does it help after post pregnancy also? Of course, because post pregnancy आपका recovery will be much better if prenatal your muscles are strong. प्रेगनेंसी के टाइम में काफी फिजिकल चेंजेस आते हैं एज यू जस्ट मेंशन. देखिए, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत ही कॉमन है एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बहुत कॉमन है. मतलब आज आपको ऐसा लगेगा अरे डायबिटीज, बट ये बहुत ही कॉमन है एंड मेनी विमेन गो थ्रू इट. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूजा. इट्स जस्ट नॉट फॉर द एक्सपेक्टेंट मदर्स बट फॉर द फैमिली आल्सो. यू बीन टॉकिंग अबाउट डूइंग एक्सरसाइज, प्रीनेटल एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बिकॉज ये जो नोशन हुआ ना, ये चेंज हुआ है हमारी दादी और हमारे जनरेशन में. ठीक है, ये हमारी बीच की जनरेशन में चेंज हुआ है. Hello and welcome to another episode of She Squad Tejaswini. I'm your host Ankurar Gupta. These days, many celebrities like Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt, and Deepika Padukone are openly sharing their pregnancy journeys. What's truly inspiring is how they stay active and fit not just during pregnancy but also after their babies are born. Today, we are discussing prenatal care and exercises that can help expectant mothers to stay healthy and fit during pregnancy and later on. To help us understand this better, we have our guest with us, Dr. Pooja Pandey Tripathi, founder of Arogya Physiotherapy. With over 20 years of experience as spine specialist physio, she also worked closely with women through pelvic floor therapy, yoga, and fitness. Dr. Pooja is also a proud recipient of many awards for her outstanding contribution to physiotherapy. Hello, Dr. Pooja. Welcome to the show. Tell our audience a bit more about yourself. So I am Pooja Pandey Tripathi. I have been doing physiotherapy for almost 2 decades now, and I have done my master's in rehabilitation, and then over a period of time, I developed a lot of interest in women health and became a pelvic floor therapist as well. So I've been over a decade, I've been helping many women, helping conceiving them, then pregnancy, post-pregnancy, menopause, perimenopause. I like to be with them and help them out to get through that phase as easily as possible. Wonderful. So, Dr. Pooja, today we are going to discuss about prenatal physiotherapies and the prenatal care. So, to begin with, in today's world where the stress levels are very high, the lifestyles are so chaotic, and many women are facing late pregnancy, this prenatal physiotherapy is really gaining a lot of attention. So, Yes. please tell our listeners what exactly is prenatal physiotherapy and how it supports a healthy and smooth pregnancy journey. So, प्रीनेटल फिजियोथेरेपी क्या है, पहले ये समझते हैं. तो बिल्कुल. प्रीनेटल फिजियोथेरेपी, प्रीनेटल मतलब आपकी प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी से पहले. ओके. Okay. सो हम आज इंडिया में एक शादी करनी है तो 1000 चीजें पूछी जाएगी. इट इज नॉट, आजकल के बच्चे तो और भी ज्यादा ना, दिस इज नॉट मैचिंग, अवर नेचर इज नॉट मैचिंग. पर जब Yes. बच्चा करना है तो ये नहीं सोच रहे कि इसके लिए भी प्रिपरेशन चाहिए है. वी शुड, आवर बॉडी शुड बी ready to have the pregnancy much smoother. So I suggest all the women, and this message is for all the women who are planning for pregnancy. First, make your body ready for it. And what do we mean by making our body ready for it? अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है. तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, थोड़ा एंड्योरेंस बेटर करना है, क्योंकि जब थर्ड ट्रिमेस्टर में पेट बाहर जाता है तो डायफ्राम पे भी लोड पड़ता है. मेनी विमेन फील दैट दे फील फटीग एंड दे फील टायर्ड, एंड
बोलते हैं सीढ़ी चढ़ने से सांस Yes. चढ़ रही है, Mm-hmm. you know. So Mm-hmm. all those things can be completely avoided if we prepare our body for pregnancy. Then while the pregnancy is going on, ये एक कंडीशन नहीं है। इंडिया में ना इसको कंडीशन की तरह मानते हैं, प्रेग्नेंट हो गई, कंडीशन नहीं है, नहीं। फिजियोलॉजिकल चेंज है। जैसे हाँ। आपका मेनोपॉज एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, आपका बॉडी चेंज हो रहा है, आपका Okay. ब्रेस्ट एनलार्ज हो रहा है, आपका पेल्विस बड़ा हो रहा है। तो उस चेंजेस को कैसे स्मूथली बॉडी ले, विदाउट पेन एंड विदाउट any undue fatigue and any kind of aches and smoother labor, ये पूरा चीज प्रिपरेशन ऑफ बॉडी, प्रेगनेंसी एंड स्मूथ लेबर, ये Mm-hmm. तीनों चीज कम इनटू प्रीनेटल फिजियोथेरेपी। Okay. 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 So, ये prenatal pregnancy, does it help after post pregnancy also? कोर्स Hmm. बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी आपका रिकवरी विल बी मच बेटर इफ प्रीनेटल योर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, Okay. बाय फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले पेल्विस दिखाती हूँ, हाँ. इससे ज्यादा बेहतर पता चलेगा। तो ये हमारा पेल्विस है। Okay. इसी के अराउंड जितनी भी मसल्स हैं उस पे हम वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। जो भी Okay. मसल्स ऊपर और अंदर, Mm-hmm. because inside also muscles are there. If all the muscles are activated, then it is called pelvic floor muscles. Now, when we exercise during pregnancy, हम pelvic floor क्या क्या करते हैं? हम prenatal physiotherapy में हम exercises कराते हैं, breathing कराते हैं, आपका posture correction कराते हैं, Okay. and make sure that the pregnancy is pain free. Now, Okay. when we start doing this, we are activating the muscles, even the core muscles, जो Mm-hmm. completely stretched है, क्योंकि बच्चा है तो आपका core muscles पूरा stretch हो रखा है। Okay. So what we do is, because the core muscles are activated, pelvic floor muscles are activated, जब बच्चा निकलता है, whether it is normal delivery है तो आपके वजाइना में कट आ सकता है, उसको बोलते Mm-hmm. हैं एपिसियोटमी। Okay. अगर सीजेरियन डिलीवरी है तो कोर में कट आता है। Mm-hmm. Okay, now in both the cases, because the muscles were activated and because the women was doing deep breathing exercises and the diaphragm and abdominal muscles connect अभी भी है, Mm-hmm. आपकी रिकवरी मच फास्टर हो जाती है पोस्टपार्टम। Okay. ओके, Okay. पोस्टपार्टम एवरीबॉडी हील्स, ऐसा नहीं है। आप Mm-hmm. ये नहीं बोल सकते हो कि पोस्टपार्टम ओके फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई वांट टू क्लाइंब एवरेस्ट, फर्स्ट डे आई कैन क्लाइंब, वी कांट। We सो can't. ऑल ऑफ अस आर हीलिंग। ओके, Hmm. सो दिस हीलिंग प्रोसेस जो है मच मच फास्टर हो जाता है, बिकॉज योर एब्डोमिनल मसल्स आर एक्टिवेटेड, pelvic floor muscles are activated, your posture is anyways better because you have been guided during the Exactly. pregnancy. You Mm-hmm. have not screwed your posture, because एक बोलते हैं एक्सेसिव लॉर्डोसिस जो बहुत ही कॉमन है। मतलब कि आप अगर, मैं खड़े होके आपको बताना चाहूंगी, तो Mm-hmm. मैं खड़ी होती हूँ और ये posture, this posture is very Bed. common post pregnancy Okay. also. Yes. True. ओके, प्रेगनेंसी में तो कॉमन है ही, बट Mm-hmm. पोस्ट प्रेगनेंसी इसलिए कॉमन हो जाता है क्योंकि आदत हो गई है, आपका पेल्विक टिल्ट हो गया है। ओके, Body has तो जब got ये, used to that posture. हाँ, Hmm. वही सो नाउ व्हाट वी डू इज, वी टेल देम एग्जैक्टली कि अभी आपको पेल्विक टिल्ट हो रहा है तो आप इसको करेक्ट करिए। सो दे Okay. ऑल्सो पुट देयर इंटेंशन देयर, तो देयर posture इज मच बेटर पोस्टपार्टम, तो हमें posture करेक्शन करना ही नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द women ऑल्सो जिनका कोर एक्टिवेटेड रहता है उनको पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है, दे Okay. हील मच फास्टर। मतलब मेरा Okay. खुद का एग्जाम्पल देखिए, Mm-hmm. मैं 11th day almost postpartum Mm. in cesarean, 11th day I was working। Okay. Okay. हाँ, तो इतनी फास्ट आपका वो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत सब चीज फास्ट फास्ट करनी है, इसका हाँ. मतलब ये है कि आप यू कैन कनेक्ट विद द मसल्स फास्टर एंड यू कैन गो टू योर रिकवरी प्रोसेस फास्टर। Okay. Okay. Fine. So, प्रेगनेंसी के टाइम में काफी फिजिकल चेंजेस आते हैं, एज यू जस्ट मेंशन.
एंड देयर आर सम Yes. कॉमन प्रॉब्लम्स आल्सो, कभी डायबिटीज आ जाती है या कभी ब्लड प्रेशर हाई हो हाँ जाता है. सो हाँ ऐसे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो प्रीनेटल हाँ. एक्सरसाइजेस किस तरह हेल्प करती हैं? देखिए, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हम्म. बिकॉज जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत ही कॉमन है, एंड यस. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बहुत कॉमन है. मतलब एज आपको ऐसा लगेगा अरे डायबिटीज, बट ये बहुत ही कॉमन है, एंड मेनी women गो थ्रू इट, एंड दे हैव वेरी हार्ड टाइम taking care of their insulin, and then later on they get into medication. But मैं try करती हूँ personally, if there is a patient who has come to me, और अभी एक्चुअली रिसेंटली आई हैड ट्रीटेड अ पेशेंट. पहले मैं उसकी स्टोरी बता देती हूँ. तो ओके. शी वाज जेस्टेशनल डायबिटीज फ्रॉम 6 weeks ऑनवर्ड्स. ओके, ओके. उसको जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट हो गया था. हम्म. The good point about that doctor was कि I don't want to put you into medication if you can control it. Okay, राइट. so can you take a help of a physiotherapist? Okay, so I ओके. along with a nutritionist, because nutrition भी बहुत रोल प्ले करता है जब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज या ओके. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है. ठीक है, हम्म. अब आपको पकोड़े खाने के मन हो जाएगा तो फिर आपका हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, राइट? तो आप न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करना बहुत जरूरी है. ओके. तो हमने उनको क्या किया, वी स्टार्टेड विथ सिंपल कार्डियो वर्कआउट विच वी गेव हर, लाइक वॉकिंग वगैरह करो एंड थोड़ा स्विमिंग करो. इसके अलावा हमने उनको तुरंत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ हाँ. ट्रेनिंग शुगर बहुत बेटर कंट्रोल करता है, विद वेट्स, विद थेरा बैंड, विद लूप बैंड, विद एंकल वेट्स. एंड you won't believe, at the end of 9th month she had gained just 2 kgs. ओके. हाँ. 2 kgs in that whole thing, because she was slightly overweight. So that weight we used it for ओके. for her pregnancy and हाँ. didn't हाँ. allow her to gain the weight, and she never had to take any medication for the whole 9 months of ओके. pregnancy. ओके. So she was never put into medication because we started the exercises much early. और ये एक्सरसाइजेस हम उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते थे. जैसे कि ओके. मान लीजिए हमने 12 weeks में एक एक्सरसाइज स्टार्ट की एंड वो कंटिन्यू रखी. We will tell her continue this for 1.5 to 2 months and come back to us. And we used to change how her body is changing. We used to also change these exercises. ओके. Regularly, she will go for blood test and all. हाँ. तो हमें वो पैरामीटर्स भी पता चलते रहते थे. तो एवरीथिंग कंसिडर. नाउ इफ यू गो टू फॉर एग्जांपल यू गो टू नॉर्मल प्रैक्टिशनर, पोस्टपार्टम प्रैक्टिशनर, और या फिर योगा वगैरह करने लग हम्म. जाएं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है. पर उसमें क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल नहीं है. तो ओके. आप, और मैं एक्चुअली ग्रुप क्लासेस में पर्सनली प्रीनेटल ग्रुप क्लासेस में कम बिलीव करती हूँ. मैं ज्यादा हम्म. बिलीव करती हूँ वन ऑन वन क्लासेस में, बिकॉज उसमें हम हर एक की बॉडी डिफरेंट है एंड हर एक की बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है इन प्रेगनेंसी. तो इफ वी आर वन ऑन वन वी कैन गिव देम मच बेटर सजेशन एंड take a protocol which is not possible so much on in a group class and all that. ओके. तो यस, आपका अल्टीमेट आंसर ये है कि हाँ, डायबिटीज और हाइपरटेंशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है प्रीनेटल फिजियोथेरेपी, एंड ओके. देयर आर चांसेस यू विल नॉट गेट इनटू मेडिकेशन एट ऑल. ओह, वंडरफुल. दैट्स राइट. सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूजा. इट्स जस्ट नॉट फॉर द हाँ. एक्सपेक्टेंट मदर्स बट फॉर द फैमिली ऑल्सो. यू बीन टॉकिंग अबाउट डूइंग एक्सरसाइज, प्रीनेटल एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Yes. Now, in the Indian society, there is this kind of a notion, ki exercise during pregnancy, I mean, two different poles apart, how safe it is. Everybody, हाँ. first thing, I'm sure that the person you have just mentioned also, when she must have consulted her family, उनका भी यही question आया होगा, exercise क्यों करना है? Pregnancy के time में कोई exercise नहीं करनी चाहिए. So what is your हाँ. take on it? बिकॉज ये जो नोशन हुआ ना, ये चेंज हुआ है हमारी
दादी और हमारे जनरेशन में, ठीक है, हम्म ये हमारी बीच की जनरेशन में चेंज हुआ है। हमारी दादी या नानी यूज टू बी सो एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक बच्चा निकल रहा है, एक बच्चा पाल रहे हैं, एक बच्चा निकल रहा है, ट्रू एक बच्चा ट्रू पाल ट्रू रहे हैं। और वहां उस टाइम पे आई रिमेम्बर मेरी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर माई दादी सो वेल बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन शी डाइड, बट देवर 10 kids. Okay, so my father used to mention that, I mean, we were all small when one after the other we were getting born. और मतलब ऐसा स्मूथ डिलीवरी होता था कि वो दादी दूसरे रूम में जाती थी, देयर यूज्ड टू बी मिडवाइफ, और बच्चा पैदा हो जाता था। ओह ओके, सो दे वर इतना सो इतना फिजिकली एक्टिव एक्चुअली सेव, क्योंकि वो लोग कुएं पे जाते थे, पानी यस उठाते थे, वो लोग चक्की पीसते चक्की थे पीसते थे। देयर वाज यस नो मेड कॉन्सेप्ट एट ऑल। झाड़ू पोछा इज सच अ गुड एक्सरसाइज यस फॉर प्रेगनेंसी, आई कैन नॉट टेल यू। मैं सबको बोलती हूँ अपनी मेड निकालो, पोछा करना चालू करो, सबकी डिलीवरी हो जाएगी। आई एम श्योर जो सुन रहा होगा ना वो ऐसे करके देख रहा होगा व्हाट इज डॉक्टर सेइंग पोछा हाँ, no, because squat is such a good position for women. Like all the women are born to squat. बिकॉज हमारा हाँ पेल्विस जितना ओपन अप होगा उतना हाँ हमारा पेल्विक फ्लोर एरिया स्ट्रांग होगा, ट्रू राइट, ट्रू उतना ट्रू हम बच्चे को पुश भी कर पाएंगे, राइट। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे विमेन बहुत एक्टिव रहती थी, और ये हम्म क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं पूछा जाता था कि आप हम्म प्रेग्नेंट हो, आप दूसरे बच्चे को क्यों उठा रहे हो, बच्चा यस 2 साल का है ना। यस ट्रू 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 सब नहीं बोलते थे, खुद ही बेटी क्यों कुछ उठा सब रहे हो कुछ यहाँ पे करना 10। पड़ता था यस यस, यस, यस। क्या हुआ कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होने लग गई, ये मेड कॉन्सेप्ट आ गया, तो प्रेगनेंसी को एक फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं, कंडीशन बना दिया गया कि हाँ अच्छा प्रेगनेंसी है, अब इस लड़की को आराम करने दो, लेटने दो। ऐसा नहीं है, देर आर सम ऑफ द प्रेगनेंसी, यस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि बच्चा अपने टाइम से पहले नीचे आ जाए, है ना, हम्म या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या ऐसा हम्म कुछ कंडीशंस होते हैं हम्म जिसमें एब्सोल्यूट बेड रेस्ट होना हम्म बहुत जरूरी है। हम्म बट ये कैटेगरी 10 या 20% है, और दे आर मच प्रायर इन्फॉर्म्ड बाय देयर ऑब्स्टेरिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट दैट दे कैन ओके नॉट बी एज एक्टिव एज अदर्स। ओके ओके, तो उनके लिए बेड बट रेस्ट अगर, सजेस्ट किया जाता है यस, नॉट यस, फॉर यस, ऑल नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर हम्म ऑल। और ना, आपका जो प्रेगनेंसी का जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है बहुत डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी से पहले कितने एक्टिव थे। हम्म For example, a woman come to me and she's like, I'm a runner, I'm a sports person, I've done ओके everything, now I've got pregnant. I can straight put her into strength training. ट्रू Okay, हम्म 5th month तक तो मैं भागी हूँ, हम्म ठीक है। या Okay, so I can, because her body is already strong, it can take those exercise. The हम्म body is already prepared to take those exercise. But अब मेरे पास एक women आई और वो बोली मैं तो कुछ भी कभी एक्सरसाइज नहीं की हूँ और प्रेग्नेंट हूँ, अभी क्या कर सकती हूँ। तो मैं बोलूंगी फर्स्ट 3 months खास कुछ मत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, 3 months के बाद मेरे पास आओ। ओके, ओके ओके तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंडिविजुअल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट ट्रू कम्स टू प्रीनेटल फिजियोथेरेपी, क्योंकि उसका बॉडी के हिसाब से आप उसको एक्सरसाइज दोगे। एक जनरल प्रोटोकॉल फॉलो करना जो आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, ओके द हाँ, क्योंकि आप देखोगे वहां पे ग्रुप क्लासेस चल रही हैं भर भर के, ठीक है, ट्रू ग्रुप क्लासेस चल रही हैं, एंड दे आर गुड एक्सरसाइजेस, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड एक्सरसाइजेस, बट हाउ मच दे केटर इंडिविजुअल नीड, दैट इंडिविजुअल इज अ यस क्वेश्चन मार्क, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हाँ चाहे आपकी मदर इन लॉ मना करे, चाहे आपकी मदर मना करे, आप उनको कन्विंस करिए कि आपके लिए एक्सरसाइज कितना जरूरी yes very true है ना। so when you're talking about individual attention Pooja so हाँ, if a person is coming to you for the prenatal exercises हाँ, so it has to be done under the guidance or it is that you teach a person and that woman can do it at home also देखो ये सब पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, दोनों हाँ पे बहुत डिपेंड हम्म करता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी मतलब विमेन इज रेडी टू कम हेयर एवरी डे और थ्राइस अ वीक, इज शी रेडी। ओके, हाँ इफ शी इज लाइक मैं तो घर पे अपने से एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती, ओके, okay okay एंड आई कैन कम हेयर एटलीस्ट थ्राइस और 4 times और एवरी डे ऑल्सो, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज, ओके, okay
we do a protocol where we are exercising with the Okay. lady. Okay. For example, I am dealing with somebody who is coming from far, because with me there are a lot of patients who come from far also, not from Bannerghatta road. और आपको बैंगलोर का ट्रैफिक पता ही है, Yes, true, ठीक है? true. Very much. तो इन दैट केस फर्स्ट डे मैं उनका असेसमेंट लेती हूँ, जिसमें मैं हिस्ट्री लेती हूँ, मतलब कि कब कब उन्होंने शादी किया, क्या उन्होंने प्लान प्रेगनेंसी किया, अनप्लान Okay. प्रेगनेंसी किया, वो कैसे थे पहले, Mm-hmm. इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ एनी डेफिशिएंसी, अनीमिया है क्या, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है क्या, ये सब Okay. देखना बहुत जरूरी है। Okay. जब मैंने उनका प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिया, मैं उनके लिए एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाऊंगी, और जितना बड़ा वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होगा, इस हिसाब से उनको एनीवेयर बिटवीन 4 to 7 days बुलाऊंगी। ओके, 4 to 7 days. 4 to 7 days में मैं एटलीस्ट उस ट्राइमेस्टर की सारी एक्सरसाइजेज उनको सिखा दूंगी और एक प्रोटोकॉल बना दूंगी कि Okay. मंडे को आप ये करिए, ट्यूसडे को आप ये करिए, वेडनेसडे को आप, ऑल डेज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मस्ट। Okay. ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे योगा के बहुत सारे फायदे हैं, वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप हमारा ना ये जो ग्लॉटिस एरिया है और Mm-hmm. डायाफ्राम है Mm-hmm. और एब्डोमेन और पेल्विस एक अम्ब्रेला की तरह जाता है, यू नो, इट्स Yes. लाइक दिस Yes. कमिंग फ्रॉम डाउन टिल डाउन, ओके, Down. और ये अम्ब्रेला की तरह कनेक्टेड होता है। अब प्रेगनेंसी में डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसीलिए डीप Oh. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे कि एब्डोमिनल मसल्स और डायफ्राम मसल्स हमेशा कनेक्टेड रहे। ओके, Okay. उसके अलावा उसका मेंटल इफेक्ट भी बहुत पड़ता है, यू बिकम मच मोर कामर, बिकॉज प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होता है, बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब मच बेटर हो जाएंगे इफ यू आर डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम और मेडिटेशन। ओके, Okay. तो मैं प्रोटोकॉल बनाती हूँ, अब मैंने 7 दिन इसको सिखा दिया, अब इनको आ गया, Hmm. कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 months they are not coming to me, now the Okay. body is changing, Changing, अब right. we are entering another trimester, Yes. so I designed different protocol for that, and अच्छा. depending on what complication has come, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट बहुत अच्छी हो बट बाद में कुछ बाद में. चेंजेस और आ Yes. सकते हैं, है True. ना? True. जैसे कि मैं आपको ये जो केस बताई थी, अभी जो रिसेंटली हाँ वाला हाँ हाँ केस हाँ बताई थी, हाँ. उसको क्या था कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर, वो शी वाज वेरी एक्टिव, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, पर उसको क्या होता है, कभी कभी बच्चा ना है, बच्चा का बॉडी जब टर्न होता है, जनरली वो 28 वीक्स टाइप्स, 30 वीक्स टाइप्स में वो टर्न होके नीचे आता है, इसका नीचे थोड़ा और जल्दी आ गया, तो Okay. क्या हुआ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, देयर इज द मसल्स वर होल्डिंग वेरी मच, ऐसा कोई बहुत नीचे नहीं आ रहा था, बट दैट हेड वाज पुटिंग लिटिल प्रेशर ऑन हर ग्रॉइन एरिया, सो शी वाज हैविंग समथिंग वेरी कॉमन कॉल्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस पेन। ओके, तो वो अपनी नी मतलब थाइस वगैरह ज्यादा हिलाती थी, तो ग्रॉइन एरिया में बहुत पेन होता था, Okay. तो फिर Okay. हमने उनकी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल उस हिसाब से, पर उसकी एक्सरसाइज हटा नहीं सकते थे क्योंकि फिर डायबिटीज शूट अप करता, तो हमने पूरा मॉडिफिकेशन किया कि लेस ऑफ लेग मूवमेंट बट स्टिल हाउ टू एक्टिवेट द बॉडी। Okay. Okay. Right. तो ये बहुत डीप है, और अगर फॉलो किया जाए तो हर मॉम और मदर इन लॉ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बहुओं को एक्सरसाइज करने भेजिए। Yes, true. और वो हर सेशन में मदर इन लॉ या मदर शुड बी accompanying the woman also, the expectant mother, so that they understand, क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के करना भी तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना. मुश्किल होता है, हाँ, और पछती है। हाँ, बहुत जरूरी है. I can There are understand some that of part. the exercises which, especially in the third trimester, Yes. some of the exercises which I tell the men to help the women, Okay. like Okay. duck walk हो गया या squats हो गया, उसमें Okay. men can hold the hand, the connection And is much better, and okay. there are certain massages which I teach men which can be done during the labor time and all that. Okay. So basically, this prenatal care is taking care of physical well-being as well as mental well-being, जो बहुत Well-being, जरूरी yes, है, बहुत ही जरूरी yes, है pregnancy के time. yes, And yes, especially yes. post-pregnancy, because we have seen the cases of depressions and lots of things increasing the stress Postnatal levels and all. depression तो बहुत common है, and I It's, think I have yes, seen one of your podcast which yes, was related yes, to yes, yes. postpartum Every depression, fourth which woman is suffering from that.
Yes. All the guys should watch this because there has to be good awareness about postnatal depression. Yes. Yes. हाँ, So, when you say they come to you and then they work out at home, so do हाँ. you tell them about the red flags also? मतलब कि warning sign कि कब तुरंत आपको exercise stop कर देनी चाहिए, एकदम रुक जाना चाहिए. 100%, मतलब अगर डिजीनेस है तो हम्म. एकदम रुक जाना चाहिए. हम्म. लिस्ट मैं हमेशा हर एक मदर क्या मैं एक्चुअली जनरली ये स्टेटमेंट सबको बोलती हूँ. Okay. जितना हम अपनी बॉडी को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता. सो Yes. लिसनिंग टू योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द हम्म. स्टेजेस, वेदर आई एम pregnant or not pregnant doesn't matter. हम्म. Pregnancy mein it is much more important to listen to your body. So the days when you don't feel like, matlab, there is a difference. You know the difference between हम्म. being lazy and not feeling well. Not feeling well. True. True. Yes. Yes. So when you are not feeling so well, give yourself time. That day can be your off day. There is Hmm. no guilty feeling about it. Hmm. Okay. Anytime you're feeling dizzy, tired, fatigue, you should not. Shortness of breath, you Okay. should not. You should not. Any vaginal bleeding, you should not exercise. Severe abdominal pain, sudden cramps, headaches, calf swelling, Mm-hmm. ankle swelling. You feel that the fetal movement is decreased because the mother can start feeling the fetal movement. They'll Mm-hmm. say बहुत भाग रहा है एकदम पेट में, Mm-hmm. इधर हलचल Mm-hmm. फिर ऑलरेडी हर दिन हलचल होती है, आज सडनली कम हलचल लग रही है, टेक अ ब्रेक. Okay. Okay, Okay. let's Okay. see whether, so these are the definite don'ts. Okay. That no, at this point of time, of course there are some of the don'ts in which exercises are not recommended at all. Yes. In the case of complete That bed I rest. told you, na, Yeah. the Yeah. Yeah. gynecologist will Yes. inform in the True. first trimester itself. They say Uh-huh. that, because especially IVF pregnancies, some of Yes. the pregnancies, which because they were not able to conceive or they were not able to hold the baby. Okay. Uterus was not strong. Uh-huh. Every time they used to conceive, there will be abortion. Yes. So such cases, we are much more, they are sensitive. So of course, saving the pregnancy is our first priority in that case. So, what I understand is it's the gynec who are going to recommend the expectant mother whether they have to go for prenatal exercises or not, depending on their Not conditions. not all gynecists do. Not all gynecists do. Okay, okay, okay. Okay, but Uh-huh. you can be your own. मतलब अगर आपको बेड रेस्ट है तो गायनेक बोलेगी बेड रेस्ट है, वो तो बहुत क्लियर है. हाँ, पर गायनेक बोलेगी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, हाँ आप वॉक कर सकते हो, वॉक कर लो, मतलब कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो. कर सकते हो. Exactly. ठीक है, क्योंकि हाँ. जनरली जिनका, जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहां पे तो ग्रुप एक्सरसाइज चल रहा है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोल देगी बताएगा. आप जाइए. हम्म. बट अगर किसी गायनेक का क्लिनिक है जहाँ पे ऐसा एक्सरसाइज सेशंस हो नहीं हम्म. रहा है, या फिर हम्म. छोटा हॉस्पिटल हम्म. है, हम्म. वहां पे ऐसे चल नहीं रहे, तो आपको गायनेक बोल ही नहीं पाएगी. मतलब दिल नॉट टेल यू, दिल जस्ट ट्रीट यू लाइक हाउ दे ट्रीट एनी पेशेंट. ओके, सो दे विल से कि हाँ वॉक कर लो, 30 मिनट्स वॉक कर लो, बिकॉज वो गायनेक भी इतनी एक्सरसाइज जानती है. Got it. So ठीक है. actually, then it's a message for the expectant mothers कि खुद ही वो जागरूक होके अपनी गायनेक को पूछें कि यस, मुझे प्रीनेटल एक्सरसाइजेस करनी है, आप मुझे हाँ, बताइए कि मेरी क्या, मैं कब से शुरू कर कब से सकती शुरू हूँ. करूं, मेरी कंडीशंस क्या है और ये. So हाँ, it is up to हाँ, the expectant mother. Let's not just rely on the doctor itself. yes, Okay. yes. Now, Absolutely. yeah. So now coming to pelvic floor exercises, which you just mentioned also before, कि it is the most important thing. So tell us something more about it. How it is important during pregnancy? क्या होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन है, 3rd मंथ में मदर इज गोइंग टू द टॉयलेट अगेन एंड Yes, अगेन एंड अगेन. yes, yes, हाँ, yes. बिकॉज जो आपका यूट्रस है Hmm. वो एनलार्ज हो गया है और ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है. ठीक है. True, true. अब अगर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग है, तो you can hold the urine for, I'm not saying holding the urine Hmm. is must. No, holding the urine is Hmm. not. But holding some amount of urine is must.
Yes. आपने अगर दो मतलब इतना मान लीजिए आपने इतना पानी पिया है और हम्म 20 मिनट्स बाद हाफ एन आवर या 1 घंटे बाद ही आप टॉयलेट जाएंगे ना, आप हम्म इमीडिएटली 10 मिनट बाद आपको यू शुड Yes, नॉट true. फील लाइक गोइंग, दैट मीन्स पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं। ओके, Okay, तो okay. पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर होल्डिंग यूरिन एंड ऑल, Mm-hmm. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एपिसियोटमी वगैरह हुई, वेजाइना कट हुआ, तो आपकी Oh, हीलिंग मच फास्टर हो जाएगी। अदरवाइज यू okay. यू मे हैव Mm-hmm. यू नो नो अर्ज टू डू सेक्स, और Hmm. यू नो योर painful sex post partum, okay, which Okay. again becomes another reason for postnatal depression। Yes, true. Very ठीक है, true. तो Mm. इसीलिए pelvic floor muscles को स्ट्रॉन्ग करना, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जैसे कि आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि मेरे को इंजेक्शन लगा और तब से बैक पेन है, मेरे को Yes. उन्होंने अनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया था, True, तब true. से मुझे बैक पेन है। I have आज आप experienced it myself. I have experienced it यस myself. I had both the यस kids cesarean, and in my first case, हाँ I had that. They gave me a back injection, and I think हाँ I had that pain for a long time. यस। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी न्यूरल प्रेशर आ जाता है और जिसकी वजह से वो बैक पेन रहता है, बट उस टाइम पे पोस्टमार्टम अगर हम मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेंथन करें, वो बैक पेन चला जाएगा। बिकॉज एक सिरिंज का असर तो कुछ घंटे तक हो सकता है, Hmm. मैक्सिमम कुछ दिनों तक हो सकता है, इट कैन नॉट स्टे ईयर्स टुगेदर। दैट मीन्स that pain has not allowed us to progress to exercises further। तो Okay, okay, बैक स्ट्रेंथनिंग और कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम, जिससे okay. कि ये बैक पेन वगैरह नहीं आए। अभी क्या होता है कि जब आपका कोर स्ट्रेच होता है तो कभी कभी वो सेपरेट हो जाता है, उस Hmm. कंडीशन को बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। अभी ये सेपरेटेड है, इसमें से ऑर्गन निकलने लग जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। अभी Oh, मसल स्ट्रांग नहीं है, okay, आपका यूट्रस नीचे चलने लग जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोलैप्स। अभी okay, यूट्रस नीचे जा रहा है, वो ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड द यूरिन और फीसिस। okay, ये सारी चीजें हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? प्रीनेटल एक्सरसाइज, पोस्टनेटल रिकवरी, okay, okay. ये सब चीजें ही नहीं होगी, क्योंकि Hmm. हमने उसको उसी वक्त रेक्टिफाई कर लिया जब वो आ सकती थी। True, ओके, true. Yes, तो दे आर ऑल कनेक्टेड, वेरी मच कनेक्टेड। yes. आधी प्रॉब्लम विमेन की सॉल्व हो सकती है इफ दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इन प्रेगनेंट। मैं बोलती हूँ ना कि विमेन जनरली, स्पेशली सेकेंड प्रेगनेंसी में, विमेन डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ Very true. बिकॉज Yeah. दूसरा बच्चा होता है, दूसरा बच्चा देखना बच्चा होता है. छोटा ही होता है, Yes, 4-5 साल yes, का होता है, 3 साल yes. का होता है, Hmm. घर होता है, दूसरी प्रेगनेंसी, सो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ। बट I am only telling कि you can pour the cup of water to other person only if your glass is full, right? Yes, true. So only if you are healthy inside for years together, you can take care of your families or in-laws or parents. Okay. So I am not saying that 24 hours be self-obsessed. I am Hmm. saying that at थोड़ा सा least one अपना hour, ध्यान 2 रखो. hours, Yes, yes. बहुत दिस इज जरूरी फॉर एवरी वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं, फॉर एवरी वुमेन है. देयर हैज टू बी 1 or 2 hours in a day which is for her own physical and mental growth। True. And I think this awareness is now coming up, Pooja, because coming Yes, back, if I talk about say 10 to 15 years back, yes, women were like that only कि हमारे पास अपने लिए time नहीं है, हमारे घर को देखना है. But now what I'm seeing with the new generation, this is the yes, positive aspect of the new generation. there is They a are negative giving, aspect also, yes, they are there is giving a priority to negative aspect। themselves. वो सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ बस प्रायोरिटी और वहीं पे सेल्फ एक रोक ऑब्सेशन रखनी में। जरूरी है. एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि दिस इज सेल्फ लव एंड ऑब्सेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. yes 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 To राइट. make yourself priority, to love yourself is very important, but be only obsessed about yourself is not okay। नॉट गुड. यस, ट्रू. क्योंकि mentally it just cuts your growth। यस.